Assalamualaikum. Welcome to Minute Meds. Today the topic of discussion is rheumatic fever. ठीक है जी. ठीक है. इसका मतलब है any fever that has manifestations of the heart in any way, like a murmur or heart failure. Along with that, there is some rheumatic involvement. यानी कोई ना कोई joint pain at any level, joint pain भी हो सकता है या arthritis full blown हो सकता है आपके पास. हम थोड़ी सी अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इतना याद रखना जरूरी है कि this patient must have been subjected to any streptococcal B infection, beta streptococcus infection in the past 2 to 4 weeks. ठीक है. तो एक चीज उसका मतलब है कि पास हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ होगा. In the form of sore throat, and then now patient has presented with fever, joint pain, any type of cardiological involvement like might be palpitations or murmur or even dyspnea. Typical presentation. Along with that, in the long run क्या क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास? अगर हम इसी पेशेंट को देखें, a patient young 16-17 years old, he presents with a history of fever with multiple joint pain, that is migratory arthritis, along with palpitations. What else we should look for is that any coriform movements होनी वाली. What are coriform या what is chorea? जो इस फॉर्म में इसका खास नाम होता है Sydenham's chorea. That is dance-like movements. और खास बात क्या होती? These are involuntary. और दूसरा हमारे पास स्किन के इन्वॉल्वमेंट में क्या मिलता है? एक खास किस्म की लीजन होती है जिसको हम कहते हैं एरिथेमा मार्जिनेटम. और ना जो स्किन पे मिल सकती है एक्सटेंसिव सरफेस पे, वो क्या चीज होती है? These are subcutaneous nodules. So a young patient, male or female, with previous history of 1 month या 2 to 4 weeks history of sore throat, he or she comes with fever, with multiple joint pain that are asymmetrical. Along with that, any of the palpitations, shortness of breath, or on clinical examination, new murmur. With further examination, we find that the patient has these involuntary movements as well as there are multiple lesions on the skin, and there are nodules on the external surfaces, mostly on the elbows. We suspect this patient has rheumatic fever. ठीक है. तो हमने करना क्या है? We have to how to confirm it. तो हमने confirm ये करना होता है. Actually बात वहीं पे आ जाती है कि actually हुआ इसमें क्या था? पास्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, इसकी एंटीबॉडीज बनी हैं. यही जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये क्रॉस रिएक्ट करती है विद द वैल्व्स, दे क्रॉस रिएक्ट विद द जॉइंट्स, they cross react with the skin, they cross react with our basal ganglia. As a result, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकती है. For this, we have the criteria called Jones criteria, which is now revised and it is called revised Jones criteria. ठीक है. अच्छा, now a patient with this combination of symptoms, how to confirm this? अच्छा जी. Then how to investigate this patient? First हमें ये देखना है कि क्या previous कोई manifestation हमारे पास बाकी है to confirm that the patient had streptococcal infection. Throat swab. Yes. कोई throat swab. एक चीज याद रखें, throat swab उस पर पॉजिटिव होता है जब एक्टिव इन्फेक्शन हो. मुश्किल होता है लेकिन for the sake of theory, for the sake of एग्जामिनेशन हम कहते हैं आगे थ्रोट स्वैब ये चेक कर लेते हैं या इसकी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे पास ASO होते हैं, एंट्री स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडीज होती हैं.
हम ये जो चेक कर लेते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी भी हैं DNS-B वगैरह भी हैं, लेकिन मेन चीज़ थ्रोट हमने देख लिया, हमने एंटी-स्टेपिलाइसिन दे दिया टू डू व्हाट, टू कंफर्म दैट द पेशेंट हैड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द पास्ट। अभी अगली चीज़ हमने क्या देखनी होती है, अगली चीज़ हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो 5 चीज़ें मौजूद हैं, दे आर देयर और नॉट। हमने देख लिया कि कार्डाइटिस भी है या नॉट। मैं माइनर और मेजर क्राइटेरिया की तरफ नहीं जा रहा, वही हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कर लिया है, वही एग्जामिनेशन में बात होगी। अब हाउ टू ट्रीट दिस इन्फेक्शन। एक चीज़ देखिए, हमारा गोल क्या ट्रीटमेंट का, ये समझना है यहाँ पे। एक तो कोई भी आपके पास रेमनेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर हो तो ट्रीट, दैट इज मैंडेटरी। ये गोल हमारा होता है। मैनिफेस्टेशन है कि नहीं है, हमने सबसे पहले यही सोचना है कि देयर मस्ट बी सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइंग इन देयर, तो हम इसको ट्रीट करते हैं। वो बताता हूँ, वेरी गुड। लेकिन ये वो दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हमारे पास पेशेंट जिन सिम्टम्स के साथ आए हमने उनको रिलीव करना होता है, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास अगर कार्डाइटिस है तो फिर क्या करेंगे, और वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि जो भी अदर सिम्टम्स हैं, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसकी होती है, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्रॉमेटिक फीवर। और क्यों होता है, क्योंकि जब दोबारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, दोबारा एंटीबॉडीज मौजूद हैं, दोबारा एंटीजन मिमिक्री होगी, और दोबारा पेशेंट को ये सारे के सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या देंगे। इसमें ये होता है कि वी गिव इंजेक्टेबल बेंज़थीन पेनिसिलिन 1.2 million units, that is given IM and in a single dose. और देंगे थोड़ा कि फ्लॉक्सीबेंज़ोलिन दे देते हैं 250 मिलीग्राम, वो नहीं, ये दिस इज द स्टैंडर्ड। देन व्हाट टू डू इफ द पेशेंट हैज, अब हम सिम्टम्स टू सिम्टम चलते हैं। सो कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट we are given benzathine penicillin. Now what if the patient has carditis, what to do? हम पहले assess करते हैं, फिर assess the severity. If the patient has failure, ठीक है, we treat it with the medicines. And what drugs we usually use, जिस हमने हार्ट में बात की थी, ठीक है, we can give beta blockers, डाययूरेटिक्स देंगे, डाययूरेटिक्स, साथ में हम वो देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE inhibitors. दिस इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर बंदा ऊपर है, ठीक है, ओल्डर है तो फिर CCV देंगे, ठीक है। दिस इज बेसलाइन हमारे पास ये, ठीक है। ये अगर अलोंग विद दैट, अलोंग विद दिस थिंग, हमारे पास पेशेंट में जो कोई वैल्वुलर रीजन आ जाती है, लाइक mitral regurgitation, aortic regurgitation, then we start with the medical treatment, and if medical treatment fails, नहीं काम कर रही, we go for valve replacement, surgery. This is all about the involvement of the heart in the rheumatic fever. Then what about the joints? If the patient has arthritis, सबसे पहले मेन चीज बेड रेस्ट। इट माइट बी अप टू 3 months तक हो सकता है, जब तक इन्फ्लेमेशन, एक्टिव इन्फ्लेमेशन कम नहीं होती, यू हैव टू गिव पेशेंट रेस्ट। और इसमें देते क्या है, एस्प्रिन फॉर इन्फ्लेमेशन, वी कैन ऐड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, orally we give prednisolone, you don't have to remove the dose, ठीक है। हम लोग ये दे देते हैं। अब आखिरी चीज आती है जो लॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज जो बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट है, जो कोरिया, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, डोपामीन। अच्छा हमारे पास आ गया जी अगली मैनिफेस्टेशन है कोरिया। व्हाट टू डू विद कोरिया, वी गिव एंटीसाइकोटिक जो पुराने हमारे पास होते थे, और बेंजोडाइज़ेपिन्स। कौन से हैं कि हम इसमें हेलोपेरिडोल दे सकते हैं, और वी कैन गो विद डायज़ेपाम। दोनों एक्सेसिव वो भी हैं, एडिक्टिव भी हैं, जस्ट सिम्प्टोमेटिक हमारे पास ये चीज़ है, ठीक। आखिरी ये हो गया हमारे पास, हमने जो वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट विद
एनी थिंकिंग इन द माइंड कि हमारे पास कोई रेमनेट तो नहीं पड़ा हुआ, हमने रोमैटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ट्रीट कर लिया, हमने कार्डाइटिस के लिए हार्ट फेलियर ट्रीट कर लिया, आर्थराइटिस के लिए हमने पेन किलर्स दे दिए, बेड रेस्ट दे दिया, कोरिया के लिए हमने ये चीज़ दे दी। अब हाउ टू प्रिवेंट द पेशेंट फॉर दिस, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन किस ड्रग के साथ करेंगे पहले ये पता होना चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन ज़्यादातर कॉमनली यूज ड्रग है वही है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। We give benzathine penicillin. The dose is 1.2 million units. Intramuscularly every month. Now the important thing is how much time, for how long you have to give. 4 to 6 months. यहाँ चीज स्टार्ट होती है मजे वाली। अच्छा जी, so this treatment is given to a patient if patient has heart failure, carditis, plus patient has valvular disease as well, like MR or AR. We have to give this treatment every month until he or she reaches age of 40 years. ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या है, इफ द पेशेंट हैज ओनली 20 साल की उम्र में वो 20 साल और वो दो ही। यस, ठीक है। इफ द पेशेंट ओनली हैज कार्डाइटिस, ओनली हैज हार्ट फेलियर, बट देयर इज नो valvular involvement, then patient has to continue this drug for 10 years. ठीक है, only the patient presented with the arthritis and all, and only heart failure was there, no valvular lesion was present, you have to continue the drug for the 10 years. Now the last thing, the patient has all the criteria, all the manifestation, except that patient didn't have any carditis, the patient didn't have any valvular heart disease. If no cardiological involvement was there, then you still have to give the secondary prevention, still the same drug, but then the duration of the drug 5 years. Only 5 years. So that's all about the rheumatic fever. Thank you.